Hello students. Now today we will study about moving coil galvanometer. So galvanometer is a device to detect current in a circuit. It can also be used to detect voltage. Now the question is, we can use ammeter to measure current and voltmeter to measure voltage. Then why do we use galvanometer? See, galvanometer is a very sensitive device. It can measure current of milli nano amperes, and that it can measure very small currents as well, which cannot be measured in ammeter because they are not so much sensitive. And one more very good thing is galvanometer gives the magnitude as well as the direction of current, because we have seen that galvanometer in between it is zero. It may deflect this way if current is flowing in one direction, and it may deflect in other side if the current is in opposite direction. So thus galvanometer is a device which can detect current, and that is also very small current, and voltage as well. Now second thing, what is the working principle of galvanometer? So we have already studied in a previous video that when a current carrying conductor is kept under the influence of a magnetic field, then it will rotate because of a torque, and that what is the principle of this galvanometer. See, a current carrying coil placed in a magnetic field experiences a torque which tends to rotate the coil and produces angular deflection. अब जब coil rotate करेगी तो angular deflection produce होगा. Now let us see the galvanometer, how it is. Now I am erasing these things. I have read it for you. Once again I am reading it. A current carrying coil placed in a magnetic field experiences a torque which tends to rotate the coil and produce angular deflection. Okay. Now we will see construction of a moving coil galvanometer. See, first of all, we take a curved magnet. Why curved magnet? That I will tell you later. Suppose this is North Pole and this is South Pole. Wait, let me make it bit curved magnet. This is North Pole and this is South Pole and this is South Pole. Okay. तो मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ट. एंड व्हाई वी आर टेकिंग कर्व? देखो, अगर हम स्ट्रेट मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां आती, ऐसे करके आती. बट इस केस में मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आएगी हर पॉइंट पे सेंटर. तो वो क्या होगी? हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर, बिकॉज योर कॉइल इज लाइक दिस. अगर सीधी आती, सपोज ऐसे करके आती, तो यहाँ पे तो चलो ठीक है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बट हर जगह पे 90 डिग्री नहीं बनता. तो टू मेक इट परपेंडिकुलर, टू टेक एंगल 90 डिग्री, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नॉर्थ टू साउथ. ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक. नाउ इसमें क्या है? आपका एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है. इससे आपका एक मूविंग कॉइल वही आपका लगा हुआ है, दैट करंट कैरिंग कंडक्टर. एंड उस करंट कैरिंग कंडक्टर से आपका एक पॉइंटर लगा हुआ है. दिस इज अवर पॉइंटर. ओके. नाउ इट्स वेरी सिंपल. ये आपका पॉइंटर हो गया. ये कैलिब्रेटेड होता है. ओके. तो जब इस पे टॉर्क लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसमें जैसे करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, तो वैसे ही ये क्या करेगा? रोटेट करेगा. रोटेट करेगा तो ये सुई डिफ्लेक्ट करेगी और आपको करंट शो हो जाएगा. ठीक है. नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज नॉट वेरी क्लियर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ एक्चुअल पिक्चर ऑफ galvanometer is. See, first of all we will take a coil. Now this is how the galvanometer is. This. See what it is. Let me show you. This is a coil. ये आपकी क्या हो गई? coil. इसमें करंट फ्लो करेगा ऐसे. अब सपोज इस तरफ करंट किधर को जा रहा है? ऊपर को. ओके. तो इधर से क्या आ रहा है? नीचे को आ रहा है. ओके. ये इधर से ऊपर को करंट जा रहा है, इधर से करंट नीचे को आ रहा है. ऑब्वियसली ऐसे घूमेगा. ठीक है. गुड. और इसको हमने आयरन, सॉफ्ट आयरन कोट से ऐसे करके पूरा कवर कर दिया. और इसमें ऐसे खूब सारी वाइंडिंग कर दी है.
और इसको हमने ऐसे करके आयरन कोर से क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, और इधर नॉर्थ एंड इधर साउथ पोल मैग्नेट का रख दिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 करके आ रही है। ओके, अब ये वाला पार्ट नीचे ऐसे, ये देखो ऐसे बेस से पाइवोटेड है ऐसे करके, ये सर्कुलर बेस, ये गोला सर्कुलर है, दैट्स व्हाई ये आपको कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। तो ऐसे करके पूरा एक उसके अंदर ये, ओके। एंड ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग लगी हुई है, ओके, और नीचे की तरफ एक स्प्रिंग लगी हुई है। अपर ये बंधा हुआ है, स्प्रिंग लगी है जो कि ऊपर से अटैच्ड है स्प्रिंग, इसको रोकेगी, और नीचे से भी यहाँ से ये ऐसे करके बंधा हुआ है, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, ये फिर स्प्रिंग इससे और इससे कनेक्टेड है। नाउ और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, पॉइंटर हो गया। तो ये सपोज ऐसे करके अंदर रखा हुआ है, ऐसे करके, ओके। अब जब करंट फ्लो करेगा तो ये रोटेट करेगा, देखो, तो आपका पॉइंटर शो होगा। तो जब करंट फ्लो करेगा तो ये रोटेट करेगा, बट थिंग इज कब तक रोटेट करेगा, टॉर्क क्या लगेगा, यू नो NIAB साइन थीटा। अब क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड रेडियली ली है तो हर पॉइंट पे थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री, डायरेक्शन विल बी, एंगल विल बी perpendicular, that means sin 90 will be 1, so torque acting will be NIAB। एंड अब जो टॉर्क लगेगा, तो जैसे ये रोटेट कर रहा है, तो सपोज आई एम ट्विस्टिंग माई हैंड, तो ये एक पर्टिकुलर फोर्स है, ट्विस्ट करते करते यहाँ पे अपोज करेगा ना वो, तो ऐसे ही ये स्प्रिंग एक काउंटर टॉर्क लगाएगी, इस जो इसको रोटेशन को अपोज करेगी, तो ये चला 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 यहाँ पे आके मान लो स्प्रिंग ने रोक दिया, तो इस पॉइंट पे जो रीडिंग होगी दैट इज अवर रीडिंग। एंड जैसे हम उसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग उसको वापस अपने पोजीशन पे ले आएगी। सिमिलरली अगर करंट अपोजिट फ्लो करेगा तो टॉर्क उल्टा लगेगा, तो ये ऐसे घूमेगा एंड लाइक दिस, ये पॉइंट करेगा पर्टिकुलर करंट पे, और स्प्रिंग जब तक कि ये टॉर्क और स्प्रिंग जो काउंटर टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी बराबर हो जाएंगे इस पॉइंट पे, तो ये आपका करंट मेजर हो जाएगा। और जब करंट हटाएंगे तो स्प्रिंग वापस उसको उस पॉइंट पे ले आएगी। दिस इज हाउ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स। नाउ लेट अस सी the values and all those things. Now see, this is our permanent magnet, ये और ये पूरा मिला के परमानेंट मैग्नेट हो गया। और ये जो आ रही है ये यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। ये क्या हो गया आपका स्प्रिंग, एसपी से स्प्रिंग को डिनोट कर दिया। ये आपका क्या हो गया पॉइंटर, एंड ये हमारा क्या हो गया स्केल। तो दिस इज द फिगर ऑफ our moving coil galvanometer and how it works that I have showed you. Now let us see कैसे counter torque क्या है and all those things, okay। अब suppose the number of turns in coil, number of turns कितने आपके n हो गए, current in coil क्या हो गया, से I हो गया, let take capital I, current in coil, then area of coil is equal to A, and magnetic field is equal to B. Now since magnetic field is radial, so this implies theta is equal to 90 degree. So thus torque acting on the coil, will be torque is equal to NIAB sin 90. Since sin 90 is equal to 1, then torque acting is equal to NIAB. Now this we will mark as equation number 1. Okay, now let the spring used have spring constant K। जो हमने स्प्रिंग यूज किया यहाँ पे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। अब जब ये डिफ्लेक्ट करेगा बाई एंगल फाई, नाउ इफ पॉइंटर deflects by 5 degree, so then
spring 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 will produce counter torque. What? Counter torque of k phi. तो k अगर phi डिग्री से रोटेट कर रहा है तो टॉर्क कितना होगा? काउंटर टॉर्क k phi होगा. ओके, और द टाइम when k phi and NIAB are equal at, I am erasing now this diagram. Okay, now the pointer stops when counter torque of spring is equal to torque due to magnetic field. So that is NIAB is equal to K phi, or current is equal to K upon में NAB into phi, or you can also write that phi is equal to NAB upon में K into I. From here we can say that this deflection we were talking about, ये जो deflection हो रहा था, ये deflection किसके प्रोपोर्शनल है? फाई. जो फाई डिग्री से डिफ्लेक्शन हो रहा है किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा आप करंट देंगे उतना ही ज्यादा आपका डिफ्लेक्शन होगा. तो काउंटर टॉर्क स्प्रिंग को, भाई अब जितनी ताकत लगाएंगे, जैसे अब मैं हाथ मोड़ रहा हूँ, कम ताकत लगा रहा हूँ तो कम मुड़ेगा, ज्यादा ताकत लगा रहा हूँ तो ज्यादा मुड़ेगा. दैट मींस अगर मैं करंट ज्यादा दे रहा हूँ, इफ आई एम गिविंग मोर करंट, तो स्प्रिंग को काउंटर टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो फाई क्या होगा? ज्यादा होगा. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट phi is directly proportional to I. The deflection of the pointer is directly proportional to the current applied. And इसके बाद once the current is, and when supply is stopped, सप्लाई स्टॉप करती मतलब करंट फ्लो करना बंद कर गया, दैट इज I is equal to 0. तो पॉइंटर comes, नहीं, spring brings pointer back to 0, मतलब फिर से बीच में ले आएगा. This is how a moving coil galvanometer works. Now we will talk some more things on it. So here let me tell you one more time. Phi angle of deflection of the pointer, and number of turns, A area, B magnetic field, K you can call it spring constant or torsion constant also, क्योंकि वो टोरोजन होता है स्प्रिंग ऐसे करके, तो टोरोजन कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड ई एंड आई अमाउंट ऑफ करंट गिवन. नाउ वी विल टॉक अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर. तो हाउ वी विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर, विल सी. Now we will see conversion of galvanometer into ammeter. Now अब galvanometer को ammeter में कैसे convert करें? उसको convert करने के लिए हम बहुत छोटा सा resistance galvanometer के पैनल में लगा देते हैं. We connect a very small resistance. अगर you can say in fact zero resistance. आइडियल एमीटर बनाने के लिए हमें जीरो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, बट आइडियली कोई भी ऐसा है नहीं जिसका जीरो रेजिस्टेंस. तो दैट्स व्हाई वी से वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस वी कनेक्ट पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, एंड दैट स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट. सी, वी कैन यूज गैल्वेनोमीटर फॉर मेजरिंग करंट बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू द galvanometer, and this small resistance is called shunt.
वही वाली बात आई टोल्ड यू जस्ट कि हम गैल्वेनोमीटर से करंट कैसे मेजर कर सकते हैं, जब हम उसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दें। सपोज ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है, इसमें हमने एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया से S, इसको हमने क्या बोला, S बोला। एंड ये S यहाँ पे क्या, S क्या है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इनफैक्ट नॉट वेरी 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 small resistance, very small resistance, and is called shunt। इसे हम क्या बोलते हैं, हमेशा याद रखना, अगर कोई बोलते हैं व्हाट इज शंट, शंट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ओके, एंड अब ये गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का एक अपना रेजिस्टेंस होगा इससे Rg। नाउ यहां पे Rg क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हमारा क्या हो गया, Rg। अब ये कैसे काम करता है, लेट अस सी। होता क्या है कि जब हम करंट पास करते हैं और शंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि हम व्हाई डू वी यूज शंट, वी यूज शंट क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, ये हाई करंट मेजर कर नहीं सकता है। तो अब क्या हुआ, आई करंट आया, बड़ा करंट आया, तो मैक्सिमम करंट आपका कहां से पास हो जाएगा, शंट से पास हो जाएगा। कहां से पास हो जाएगा, शंट से आई एस। ओके, तो नहीं, ज्यादातर करंट आपका कहां से पास हो जाएगा, शंट से पास हो जाएगा, लेट इट बी, और यहां से जो बचा हुआ कहां से पास हुआ, आई, तो इसको हमने आईजी नाम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आईजी। ओके, अगेन आई एम टेलिंग, जब आई करंट फ्लो हुआ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो मैक्सिमम करंट यहां से निकल जाएगा और बहुत थोड़ा सा करंट आपका यहां से फ्लो होगा, दैट इज आईजी। तो यहां बच क्या करंट, आई माइनस आईजी यहां निकल गया। ओके, नाउ दिस, अब तो ये करंट की वैल्यू क्या है या शंट की वैल्यू क्या है, वो कैसे पता चलेगा, सी सिंपल, हम किरचॉफ लॉ लगा देंगे, आईजी आरजी, आईजी आरजी इज इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू एस, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो है आपकी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों ही जो है वो आपके किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो S विल बी इक्वल टू IG इंटू आर अपॉन आई माइनस आईजी, तो ये आपकी क्या होगी, शंट की वैल्यू होगी। ओके, लेट मी, इट इज आरजी, क्योंकि आरजी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हमारी क्या होगी, शंट की वैल्यू होगी। अच्छा, अब इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो व्हाट आर इक्विवेलेंट विल बी Rg इंटू एस अपॉन में Rg प्लस एस। अब सिंस S इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Rg प्लस एस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rg हो जाएगा। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Rg एस अपॉन में Rg, जैसे Rg विल कैंसिल आउट, तो इसका मतलब आपका R इक्विवेलेंट लगभग किसके बराबर हो गया, शंट के बराबर। R इक्विवेलेंट आपका लगभग किसके बराबर हो गया, शंट के बराबर। तो इस पूरे होल सिस्टम का जो रेजिस्टेंस होता है वो S इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस S हो गया अप्रोक्सीमेटली, और जो आपकी शंट की वैल्यू होगी वो ये होगी। ओके, तो जो भी आप करंट फ्लो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप शंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको शंट की वैल्यू पता है तो आप ऑब्वियसली कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता चल जाएगा हमें। दिस इज हाउ a moving coil galvanometer is converted into ammeter. Once again, to convert a moving coil galvanometer into ammeter, we connect a small, very small resistance in parallel to it. And why we connect small resistance? So that maximum current can flow from here, because galvanometer is a very sensitive device. It measures the current of the order microampere and nanoampere. Okay, now we will talk about conversion of galvanometer into voltmeter.
Now we will see conversion of galvanometer into voltmeter. Now as in ammeter we used shunt, here we will use a high resistance. Now that shunt was connected in parallel and this high resistance will be connected in series. क्यों? So that again we know that it is sensitive way, तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज वहीं पे ड्रॉप हो जाए, यहाँ पे हमें थोड़ी सी वोल्टेज मिले. तो this, तो again I am reading it for you. To convert a galvanometer into a voltmeter, a large resistance is connected in series. तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक लार्ज रेजिस्टेंस चाहिए जो कि हम उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे. और आरजी इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे अगेन आरजी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. और आर क्या है? हाई रेजिस्टेंस, हाई resistance connected in series. Again I am saying क्यों connect करते हैं? You can write it down as well. We connect this high resistance in series because galvanometer is a very sensitive device, so that maximum voltage drops here and very less voltage goes up to that galvanometer. That's why we connect high resistance in series. Now suppose ये दिस इज टर्मिनल, ये पूरा वोल्टमीटर, ये पूरी अरेंजमेंट वोल्टमीटर हो गई. यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज ड्रॉप क्या है? V. तो इसका मतलब V इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हाई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी क्या हो जाएगी? IRG. ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी? IR. ठीक है, तो V इज इक्वल टू व्हाट? IRG प्लस IR. ओके, क्योंकि आई आपका क्या है? जो करंट आपका फ्लो हो रहा है. दैट मीन्स V माइनस आई आर जी इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू V माइनस आई आर जी अपॉन में I. ये आपका रेजिस्टेंस जो आप लगाओगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट यू विल यूज, जो कि हम क्या करेंगे? यूज करेंगे. ओके, नाउ वी कैन आल्सो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ this voltmeter. That means R equivalent is equal to Rg plus R. Now we know that since R is much greater than Rg, that means R plus Rg is approximately equal to R. तो इसका मतलब R equivalent is equal to approximately equal to R. वहां पे आपका R equivalent किसके बराबर था? शंट के बराबर था. और यहाँ पे R equivalent आपको किसके बराबर है? ये हाई रेजिस्टेंस के बराबर है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो दिस इज हाउ क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. नाउ सी व्हाट द टर्म सेंसिटिविटी मींस. सी सेंसिटिविटी इज की लाइक कितने कम उस पे आप कितना ज्यादा रिएक्ट करते हैं. सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट. अ स्टूडेंट इज स्टडीइंग एंड ही इज नॉट गुड एट स्टडीइंग, एंड इफ टीचर जस्ट स्कोल्डेड हिम, टीचर ने बस उसको हल्का सा डांट दिया, एंड ही स्टार्टेड टू क्राई. वन स्टूडेंट, ठीक, एंड द अदर स्टूडेंट वो केवल स्कोल्डिंग पे, जब उसको डांट पड़ी उस पर वो नहीं रोया, दो तीन झापड़ पड़े, उसको डांट पड़ी, टीचर ने हो सकता है दो तीन झापड़ मार दिए, स्टिल वो नहीं रोया. तो इसमें ज्यादा सेंसिटिव कौन है? वो स्टूडेंट जो थोड़ी सी स्कोल्डिंग पे ही रो गया. दैट मींस उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है. तो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटिविटी, तो थोड़ी सी वोल्टेज, बहुत छोटी सी वोल्टेज या करंट देने पे कितना डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो अगर हम बात करें, पहले वी टॉक अबाउट करंट सेंसिटिविटी. current sensitivity, so that means deflection of pointer per unit current is called
करंट सेंसिटिविटी, कि कितना करंट, हल्का सा करंट दिन में कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज सपोज करंट सेंसिटिविटी आई ऐसे रिप्रेजेंट करें, इज इक्वल टू फाई बाय आई। तो ये आपका क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी। फाई डिफ्लेक्शन हो गया पर यूनिट करंट। तो यहां से देखो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू एन ए बी के इनटू आई, तो फाई बाय आई, यहां से देखो तो दिस इंप्लाइज आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन में के। वाई, सिंस फाई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन में के इंटू आई, तो इसका मतलब फाई बाय आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन में के। तो ये आपका क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी, एन ए बी अपॉन में के। अब करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होगी, करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होगी, सी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस पहले कैसा, फर्स्ट बाय, हम ऊपर को एरो बना रहे हैं, दैट मींस आई एम मेकिंग एरो अपवर्ड, दैट मींस इंक्रीज, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कंडक्टर, जो आप करंट कॉइल ले रहे हैं उसका। और बी, बाय इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, by increasing magnitude of magnetic field. Second, by decreasing torsion constant of spring, torsion constant of spring। तो स्प्रिंग का टोरोजन कांस्टेंट आप अगर कम कर देंगे तो आपकी वो बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो दिस इज अबाउट करंट सेंसिटिविटी। नाउ सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अब अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें इसी में, दैट मींस वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो दैट विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड voltage sensitivity, is called voltage sensitivity. Deflection of pointer per unit volt is called voltage sensitivity. That means voltage sensitivity Vs is equal to phi upon में V, Vs is equal to phi upon में V, deflection per unit volt। तो इसका मतलब we can write voltage sensitivity is equal to phi की वैल्यू ये है NAB अपॉन में K, phi I अपॉन में V। That means from here I am writing here, तो Vs is equal to NAB अपॉन में KV into I। अब since V is equal to क्या होता है आपका, we know that IR, ओके, तो I पुट कर दोगे IR, मतलब Vs is equal to NAB अपॉन में K into IR multiplied by I cancel out, that means voltage sensitivity is equal to NAB अपॉन में K into 1 by R। ये हमारी क्या हो गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ अब हाउ डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, अगेन सेम, you can write all the things same। कैसे, voltage sensitivity can be increased by first increasing area, second by increasing magnetic field, third by decreasing value of K, इन तीनों से। बट अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट मी शो यू हैव रिटन दिस, नाउ लेट मी शो यू नंबर ऑफ टर्न्स, चेंज इन नंबर ऑफ टर्न्स
does not affect voltage सेंसिटिविटी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर देंगे तो उससे वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज इफ number of turns are doubled, अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए, डबल कर दिए, दैट इज 2n। तो अब अगर आपने 2n मतलब कि उतना वायर बढ़ा दिया तो 10 द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डबल्ड। अगर आप उसके नंबर ऑफ टेंस 2n कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो इन दैट केस Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2NAB अपॉन में K इंटू 2R। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो Vs इज इक्वल टू NAB अपॉन में K इंटू R। दैट मीन on changing the increasing or decreasing the number of turns, we can increase or decrease the current sensitivity, but changing the number of turns does not affect the voltage sensitivity. Now this is the end of this chapter. This chapter is finished. Now we will start another chapter, that is earth magnetism.